Part 1 we did in part 1 of Indian economy 1950-1990 chapter 2. We covered what do you mean by economic planning, how many types of economic structures are there, capitalist, socialist, mixed economy, what is the economic structure of India, that is mixed economy, what are the main central problems of any economy, that is what to produce, how to produce, and for whom to produce, and why they arise, plus what are the main 5-year goals, what are the main goals of 5-year planning, and why we do 5-year planning, who is the chairman of 5-year planning commission, and what is the current name of your planning commission, that is Niti Aayog. Okay, in second part we will study how this 1950 to 1990 the planning which has been done in India after independence, how it changed the various sectors of the economy, how it influenced your agriculture, how it influenced your industries, what do you mean by green revolution, why subsidies were given, whether they should be given or not, what was the export and import structure, how what changes came in that. All this we will study in this part 2. So let's begin. First of all, agriculture. We all know that on the eve of independence, our agriculture was in backward situation, and we totally depend on are on the mercy of nature for irrigation of our agriculture and crops. Okay, so there was no latest irrigation facilities, no high yielding variety of seeds. So in our 5-year economic planning we decided to uplift the condition of agriculture. For that, what we did, we started some land reforms. The government started some land reforms. And what were those land reforms? Land reform number 1, what was that? Abolition of intermediaries को हमने abolish किया. जो जमींदारी सिस्टम था, middleman सिस्टम था, उनको abolish किया गया. That was the biggest land reform. Okay, that was the biggest land reform कि उनको abolish किया गया. Second was land ceiling. तो हमने गवर्नमेंट ने क्या किया इकोनॉमिक प्लानिंग में या प्लानिंग कमीशन, व्हाट दे डिड, दे फिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ योर लैंड. what they did, they fixed the maximum size of a land which can be held by an individual agriculturist. इससे बड़ा प्लान अगर होगा तो एक्सेस जो लैंड होगा वो साइज से ऊपर, जैसे 1 हेक्टेयर फिक्स किया और मेरे पास 1.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर इज़ अ मैक्सिमम लैंड, तो जो 0.5 एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट सील कर लेगी और वो किसी नीडी टिलर को दे देगी जो लैंडलेस है. ठीक, तो दैट इज़ अ थिंग. और उसका 2 पर्पस सॉल्व हो गया कि सारा मतलब ये रिच नहीं रह गया, पुअर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जब टिलर्स जो दूसरों के लैंड पे काम कर रहे हैं, जब वो अपनी ज़मीन पे काम करेंगे तो दे विल बी मोटिवेटेड कि वट एवर दे विल ग्रो दैट विल डायरेक्टली बेनिफिट एंड इंक्रीज देयर इनकम. ये नहीं कि मेहनत वो कर रहे हैं और इनकम जा रही है ज़मींदार के भी ऊपर. तो दैट इज़ वॉज द मेन पर्पज़ ऑफ योर लैंड सीलिंग. Next, many incentives were given. Third point was of incentives. Many incentives were given, like subsidies were given on fertilizers, on seeds, on your pesticides. For this, what do you mean by subsidies? Subsidies are providing the रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एट लो कॉस्ट, रिड्यूस रेट पे, मार्केट रेट से कम पे गवर्नमेंट जब अलाउ करती है तो इसको काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं, और रिड्यूस रेट पे गवर्नमेंट ने हेल्प करा तो फाइनेंशियल हेल्प भी बोलते हैं कि मार्केट रेट से कम पे गवर्नमेंट ने आपको सीड्स अवेलेबल करा दिए. 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में अवेलेबल करा दी तो 5 रुपये बचे ना आपके. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कैश नहीं देती है बट आपको मार्केट प्राइस से कम पे चीज़ें अवेलेबल कराती है, लाइक सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं. So this was the agriculture land reforms. Then after all this, after promotion of high yielding variety of seeds, latest aggregation facilities, pesticides, fertilizers, it resulted in what? It resulted in your green revolution. Now green revolution, students, you have studied from class 9th, 10th onwards. So what do you mean? Green revolution is generally came in 2 phases. Okay. And who brought this? This was brought by Professor M.S. Swaminathan, right? So in M.S. Swaminathan brought the phase of green revolution. He suggested, he made one committee and he suggested कि like this we can increase the production in agriculture. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फोकसेस ऑन द वीट क्रॉप इन फर्स्ट फेज़ में किस पे फोकस किया गया? वीट पे किया गया. सेकेंड फेज़ में वीट एंड राइस पे किया.
जब इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया तो ओनली आपका कुछ पार्ट्स में लॉन्च किया गया, जैसे पंजाब है, हरियाणा है एंड यूपी है, ठीक। तो लेटर ऑन जब ये सेकेंड फेज़ में आया तो इसने ज़्यादा एरियाज़ कवर किए, तो ज़्यादा एरियाज़ जब कवर किए सेकेंड फेज़ में तो अदर वेराइट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी गया था, उसके बाद ये नॉर्थ में पहुंचा एंड देयर दे एक्सपैंडेड। और सिर्फ वीट पे ही नहीं किया गया, राइस में भी किया गया। तो दिस वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या हुए? ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे हुए आपके प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। व्हाट हैपन? ये प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ी तो आपकी इनकम भी बढ़ गई, राइट? इनकम भी बढ़ गई, फिर ज़्यादा फ़ायदा होने लगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। जब आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए, फर्टिलाइज़र्स दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइज़र्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज थी उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन। मोर ओवर जब फूड प्रोडक्शन सफिशेंट होने लगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, फूड प्रोडक्शन सफिशेंट होने लगा, तो इससे एक चीज़ और हुई, हमारे सेल्फ रिलायंस के रास्ते खुल गए, यानी इंपोर्ट हमने कम कर दिया। इट हेल्प्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स। हमारे इंपोर्ट्स भी गिर गए, हमको फूड के लिए दूसरी कंट्री के मुंह नहीं देखने पड़े। दैट वर द बेनिफिट्स ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन। Now many people said कि subsidies should be given, subsidies should be not, few were in favor of subsidies and the other were not in the favor of subsidies. तो there was an argument done कि subsidies होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो subsidies होते क्या हैं? First of all, it is making available goods of making available raw materials which helps in production at reduced rate। रिड्यूस रेट पे आपने मार्केट रेट से कम पे अवेलेबल कराया, यानी रिड्यूस रेट पे आपने अपने इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन को अवेलेबल कराया, लाइक सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, तो आपने रिड्यूस रेट पे इनको अवेलेबल कराया। वेयर हाउसेज हो गए, तो रिड्यूस रेट पे मतलब मार्केट रेट से कम पे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया। तो कुछ लोगों ने बोला ये होनी चाहिए, कुछ लोगों ने बोला ये नहीं होनी चाहिए। क्यों बोला गया ऐसा? इज़ इट गुड फॉर इकोनॉमी लाइक इन इंडिया एंड डू दे बेनिफिट पुअर? जनरली जहाँ बड़े बड़े लैंड्स थे उन्होंने इसका बेनिफिट ज़्यादा उठाया, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुरू हो गई सब्सिडीज़ से। जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको अप्लाई करना आता ही नहीं था, वो उस तक सब्सिडीज़ पहुँची ही नहीं, मिडिल मैन ने ही इस सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा लिया, इसलिए मैनी पीपल वर अगेंस्ट दिस सब्सिडीज़। ओके, next we are coming on the imports and exports. So what were the conditions of imports and exports and how it was influenced by your Indian economics planning of 1950 and 1990. We focused on what? We focused in new economic planning on import substitution. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमने फोकस किया। इसके लिए हमने क्या किया? अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। तो इट्स गुड, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब इससे क्या हो गए? हमारे दो फ़ायदे हो गए। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो एक तो हमारे हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज़ की बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इम्प्रूव हो गई सिचुएशन। थर्ड थिंग क्या हुई कि हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फॉरेन से नहीं आएगी। चाइना, अमेरिका हमको नहीं बताएगा कि हम इंडिया में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज फॉरेन कंट्रीज़ फॉर आर फूड। ओके, फॉर दिस मैनी अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अचीव करने के लिए कई चीज़ें हमने फॉलो करी। वो दो चीज़ें क्या फॉलो हुई? हमारी फॉलो हुई इम्पोर्ट्स के टैरिफ्स एंड कोटाज़। क्या फॉलो हुआ? टैरिफ्स एंड कोटाज़। अब ये टैरिफ क्या है? टैरिफ्स आर द टैक्सेस, टैरिफ टी फॉर टैरिफ, टी फॉर टैक्सेस। ओके, टैरिफ आर द टैक्सेस विच आर लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो डिस्करेज करने के लिए इम्पोर्ट्स को हमने क्या किया? टैरिफ को बढ़ा दिया, टैरिफ को हमने इंक्रीज़ कर दिया। कोटा फॉर क्वांटिटी, यानी वी फिक्स द क्वांटिटी वॉज फिक्स कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ, टी फॉर टैरिफ, टी फॉर टैक्स, टैक्स बढ़ा दिया जिससे इंपोर्ट हमारा रुक गया। और कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी फिक्सिंग करना, फिक्स कर दी हमने, जिससे हमारा क्या फ़ायदा हो गया कि हम जो है फिक्स क्वांटिटी से ऊपर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इंपोर्ट हमने रिड्यूस कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। ओके, दिस वाज द थिंग।
प्रोटेक्शन किया, प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, टैरिफ्स किए, टैरिफ मीन्स व्हाट, आई टोल्ड यू टैरिफ मीन्स टैक्सेस, कोटास मीन्स फिक्सिंग द क्वांटिटी कि इतना ही आप 1 टन ही इंपोर्ट कर सकते हो, 1 टन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज़ द थिंग। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि कंक्लूजन में इंडियन इकॉनमी हैड अ ग्रेट टाइम फ्रॉम 1950 to 1990।